Namaskar, Jai Hind. I am Anurag Gupta, Director Vidyaniket School, Gwalior. First of all, I would like to thank the team Fitz Robotics and especially Vaibhav Dikshit for giving me this opportunity to speak to you on this platform. The topic that was given to me, or rather I was asked to choose, it was left up to me to choose the topic that what should I want to speak on. So everybody is talking on side effects of corona, post corona, what will happen after corona, what will happen after lockdown. So I decided to choose something different, and this is not related to corona, it is related to a normal lifestyle. And this problem we are facing for last so many years, and if it's not addressed properly, we would be facing this problem for long, and we need to address this problem. So the topic that I chose to speak on today is tolerance in students. We talk about tolerance in the country. I want to talk about tolerance in students. We have been listening to certain cases that have happened in the past in India itself, in different schools across the country, where students have been involved in a number of crimes in school premises as well as outside school premises also, which is not a good sign for a country like us. The country India is known for its values, Guru Shishya Parampara, संस्कार, ये सारी बातें हम हिंदुस्तान के लिए कहते हैं, और हिंदुस्तान के यंग माइंड्स और स्कूल्स में हमको ये इनटॉलरेंट बिहेवियर देखने को मिल रहा है फॉर लास्ट सो मैनी ईयर्स. देयर आर मेनी रीजंस बिहाइंड दैट आल्सो, बट वी आर सीइंग दैट. वी आर सीइंग स्टूडेंट्स अटैकिंग स्टूडेंट्स. We are seeing students attacking teachers. We are seeing older students attacking younger students also. So this is not a very small problem, because we need to understand the psyche of this. Otherwise, it would be a very big problem for the whole country. Because once the student is outside the school, and if he goes out or she goes out with this mindset and this psychology in his or her mind, can you realize what will happen to the society that he'll be or she'll be living in after that? So just want to talk to you regarding this, that what needs to be done and how this problem needs to be addressed. I've been hearing students everywhere, or when you talk to young people, say 13 years, 14 years, 15 years of age, and they say a very normal thing, that it's our life. We are the owners of our lives. Is it really? Is it really that it's your life? If a person of 13 or 14 or 15 years of age is saying that it's my life and my life, my rules, that's what I see a caption in most of the students that they write, my life, my rules. So first thing I need to clear to all the students especially, कि this is not your life. If you think that's your life, it's the biggest mistake of your life, that you think it's your life. अभी आप उस कैपेसिटी में नहीं हैं जब आप ये कह सकें कि ये आपकी लाइफ है. ये जो लाइफ है, ये लाइफ आपके फादर की है, जो सुबह से शाम तक काम करता है इस उम्मीद में कि आपको एक बेहतर जिंदगी वो दे सके. खुद भूखा रहता है, खुद अपने खर्चे कंट्रोल करता है, ताकि उसके बच्चों को, उसके परिवार को कोई भी कमी किसी तरीके की ना हो. तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये आपकी लाइफ है? पहली बात, ये लाइफ आपकी माँ की है, जो सुबह से शाम तक इस उम्मीद में आपकी सेवा करती है, पूरे परिवार की सेवा करती है कि जो हमारा बेटा है या बेटी है जब कुछ करेगा, अच्छा करेगा तो हमारी ज़िंदगी सुधारेगा, या हमारी बेटी अच्छा करेगी तो हमारी ज़िंदगी सुधारेगी.
या हमारे लिए, हमारी फैमिली के लिए अच्छा नाम लेके आएगी। ये उस माँ की है जो खुद भूखी रहेगी लेकिन आपको खाना देगी समय पे, जो रात तक जगेगी जब आप पढ़ेंगे कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, जो सुबह जल्दी जगेगी दिन भर का काम करने के बाद कि आप कोई परेशानी ना हो और आप अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई कर सकें। तो ये हर माँ बाप, दुनिया का कोई भी माँ बाप ऐसा नहीं है जो ये सपना नहीं देखता कि हमारा बच्चा, आवर चाइल्ड विल डू समथिंग बेटर, समथिंग गुड फॉर हिज फैमिली, bring good name to his family, to his forefathers, to his ancestors, and will create a good reputation not only in his school but in his society, city, state, country, all over the world. ये हर माँ बाप का सपना होता है कि उसके बच्चे अच्छा नाम पैदा कर सकें अपने लिए और अपने परिवार के लिए। तो ये जो लाइफ की आप बात करते हैं कि हमारी लाइफ है, तो ये बात तो आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि ये लाइफ आपकी नहीं है। ये लाइफ इन सब लोगों की है जिनके बारे में मैंने अभी आपसे बात की। ये लाइफ आपके भाई की है, ये लाइफ आपकी बहन की है जो दिन रात आपके सपोर्ट में खड़े रहते हैं। तो जब हम कोई गलत कदम उठाते हैं, जैसे अगर पुराने केसेस हम देखें, जब हम इमोशनली स्टेबल नहीं होते और हम फिट ऑफ रेज में कोई भी ऐसा कदम उठा लेते हैं जिससे ये सारी चीज़ें जो हैं वो स्टेक पे लग जाती हैं। आपने तो किसी को मार दिया, आपने किसी को कोई नुकसान पहुंचा दिया, उसका जो नुकसान हुआ है ना वो सिर्फ आपको नहीं हुआ है, वो जितने लोग आपसे जुड़े हुए हैं, ऑल दोज पीपल हु आर एसोसिएटेड विद यू विल पे फॉर दैट पर्टिकुलर सिन ऑफ योर्स। एंड बाय कमिटिंग सच अ क्राइम committing such a crime will not take more than 1 minute. That's all. That's the only time that it will take. But that 1 minute will ruin your complete family. Will ruin your complete family, number one. Will ruin your complete career, number two. Will ruin the dreams of your family forever. Forever. Forever it will absolutely finish off everything. तो ये जो उम्र है आपकी 14 साल 15 साल में, मेरा जो अभी उद्देश्य है वो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन के लिए मैं बात कर रहा हूँ, स्पेशली बिटवीन 9th एंड स्टडिंग फ्रॉम 9th to 12th, बिकॉज यहाँ जो कंटेमिनेशन दिमाग में आता है वो कंटेमिनेशन कम करने के लिए हमको क्या करना चाहिए। ये जो एज है ना आपकी, इस एज में आपको अगर आईपॉड नहीं मिला आपकी पसंद का, या अगर आप जिस किसी लड़की को मोहब्बत करते हैं, जिसको आप मोहब्बत समझते हैं, वो किसी और से बात कर रही है और ये आपके लिए इतनी बड़ी बात हो गई कि आप जाके जिस इंसान से वो बात करिए आप उसका गला घोट दें या उसके लिए कोई ऐसी परेशानी खड़ी कर दें, तो ये ज़िंदगी जो है आज की शुरुआत है। अगर आपको आपकी पसंद की लड़की अभी नहीं मिली ना, या आपको आईपॉड नहीं मिला, या आपको कोई गैजेट नहीं मिला, या आपको इस बात का गुस्सा है कि आपके पिताजी ने आपको वो बाइक नहीं ला के दी जो किसी पड़ोसी के पास है, तो ये एज नहीं है उस चीज़ की। उस चीज़ का गुस्सा आप ऐसे समाज पे नहीं निकाल सकते, क्योंकि आप जिस पे वो गुस्सा निकाल रहे हैं, ये बात मान के चलिए कि वो आदमी, वो इंसान उतना ही प्रेशियस है अपनी फैमिली के लिए जितने आप अपनी फैमिली के लिए हैं। तो अगर इफ़ यू गिविंग देम, इफ़ यू हार्मिंग एनीबडी, इफ़ यू आर डूइंग एनी हार्म टू एनीबडी, ही और शी इज़ ऑल्सो प्रेशियस टू हिज और हर फैमिली लाइक यू आर। तो जो नुकसान उनके माँ बाप का होगा, जो नुकसान उसकी फैमिली का होगा, उसको भी सोचिए, वो भी नुकसान है और वो सोसाइटी का ही नुकसान है। तो आपका तो नुकसान है ही है, आपने सामने वाले का नुकसान फिट ऑफ रेज में किया, क्योंकि हम टॉलरेंट नहीं थे। हम टॉलरेंट इसलिए नहीं थे क्योंकि हमारे इमोशंस पे हमारा काबू नहीं था। वी वर नॉट एबल टू हैंडल आवर इमोशंस। अभी तो जिंदगी की शुरुआत है, इट्स स्टार्टिंग, योर लाइफ इज स्टार्टिंग। 9th to 12th इज व्हाट? नथिंग। It's you're starting your life. Let you come out of the school boundaries and then you decide, then you realize
what actual life is. Life is actually, you'll see when you come out of the boundary of the school, when you go out of the school, or when you go out of your house, when you go for higher studies, when you go for jobs. See the kind of restlessness you will be feeling if you go in the real life. वो real life है. तो हम जरा सी चीज़ों को अगर नहीं समझना चाहते, हम जरा सी चीज़ों के लिए परेशान हो रहे हैं कि हम इस चीज़ को हैंडल नहीं कर सकते, हमारा एग्ज़ाम कल है, हम वो प्रेशर हमारे ऊपर है कि हमारा एग्ज़ाम कल है, तो हम इमोशनली डिसेबल्ड डिसबैलेंस हो जाते हैं और हमको कोई चीज़ नहीं मिली, या हमारे फादर ने कोई टॉय ला के नहीं दिया, या हमारे फादर ने कोई मोबाइल ला के नहीं दिया, या हमको ये लैपटॉप का मॉडल नहीं वो लैपटॉप का मॉडल दिया, और उसके लिए हम गुस्सा हैं, तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कुछ नहीं है. और इसके लिए जिम्मेदार एक तो ये है, दूसरी जिम्मेदारी क्या है, जो हम अपने परिवार के साथ समय बिताना नहीं चाहते ना. ये जो एज है ना, 10th 11th 12th 9th, ये जो स्टूडेंट्स की जो एज है, 8th ऑनवर्ड जो स्टूडेंट्स की एज है, हमको लगता है कि हमारा दोस्त जो है वो ज़्यादा अक्लमंद है, वो ज़्यादा हमको सही सलाह देगा. वो भी उतना ही बेवकूफ़ है जितने आप हैं. इस बात को आप समझ लीजिए. जितनी बेवकूफ़ियाँ आपके अंदर भरी हैं, उससे एक ग्राम ज़्यादा बेवकूफ़ियाँ उसके अंदर भी भरी होंगी. वो भी एक्सपीरियंस नहीं है लाइफ के लिए. आपके लाइफ में एक्सपीरियंस कौन है जीने के लिए? आपके लाइफ में सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस आपके पास आपके माँ बाप हैं, जिनके पास हो सकता है उतनी टेक्निकल एक्सपर्टीज़ ना हो दैट यू मे हैव. दे माइट नॉट बी गुड इन एकेडमिक्स, दे माइट नॉट बी गुड इन अदर टेक्निकल स्किल्स, बट दे हैव लाइफ स्किल्स. उनसे ज़्यादा लाइफ स्किल्स किसी के पास नहीं है. और उसके बाद कोई अगर आता है आपकी ज़िंदगी में, तो वो आपका टीचर है. वो आपका टीचर है, क्योंकि एक टीचर कभी नहीं चाहेगा कि उसके बच्चे कुछ ऐसा काम करें जिससे उसके अपना तो नुकसान करें ही करें, उस टीचर का भी नुकसान करें, उसका भी नाम खराब करें. बिकॉज नो टीचर टीचेज यू टू गो एंड किल समबडी. नो टीचर्स टीचेज यू टू शो एंगर टू समबडी. Any teacher will only fight for his life, throughout his life, just to make sure that you do something good, not only for your family, but for the whole society. और हम क्या करते हैं, हम एक गलती करके, अपने इमोशंस पे काबू ना करके, हम एक ऐसा डिसबैलेंस बना देते हैं और ऐसा ब्लैक होल क्रिएट कर देते हैं अपनी लाइफ में, जो कभी भरा नहीं जा सकता. और ये ब्लैक होल आप कुछ भी कर देंगे नहीं भरेगा. तो मेरा आपसे ये आग्रह है, क्योंकि अब मैं आता हूँ क्या हमको करना चाहिए. आप लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं, एंड यू सी अ लॉट ऑफ नॉनसेंस ऑन इंटरनेट. यू सी अ लॉट ऑफ नॉनसेंस ऑन इंटरनेट. द इंफॉर्मेशन दैट यू आर गैदरिंग, इट्स फ्लोइंग इन ओपन एयर, इट्स फ्लोइंग एवरीवेयर, एंड यू आर गेटिंग इट इन टू योर माइंड. And you're feeding into your mind, and then you react without even analyzing that whether this information which I'm getting is good for me. I should use it for my good, or if I use it, will I do something better? हम ये बिना सोचे समझे सारी इन्फॉर्मेशन अपने दिमाग में ले लेते हैं और उसके हिसाब से हम एक्ट करते हैं. तो सबसे पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि इन्फॉर्मेशन सब जगह बट रही है. अब वो गुड है कि बैड है, वो आपको डिसाइड करना है. अगर वो आपकी ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए वो इन्फॉर्मेशन आपके पास आई है, यूज़ दैट इन्फॉर्मेशन, दैट इज़ अ गुड इन्फॉर्मेशन. और आपको लगता है कि नहीं, ये मेरी ज़िंदगी बेहतर नहीं करेगी, मेरी ज़िंदगी इससे बेहतर नहीं होगी, वो इन्फॉर्मेशन आपके लिए किसी काम की नहीं है. तो उस इन्फॉर्मेशन से दूरी बनाइए, पहली बात. तो जितनी बकवास इंटरनेट पे चल रही है, उससे दूरी बनाइए. सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इंटरनेट का यूज़ करिए रिसोर्स की तरह, यूज़फुल रिसोर्स की तरह, वेस्टफुल रिसोर्स की तरह नहीं, जो कि नॉर्मली हम लोग कर रहे हैं आजकल. उसके अलावा अभी आप, क्योंकि लॉकडाउन है, माँ बाप भी घर में हैं, सब लोग घर में हैं, स्टार्ट स्पेंडिंग टाइम विद योर फैमिली. स्टार्ट डूइंग certain things with your family that will bring you closer to your family, and that discomfort that you're having in your minds because of peer pressure or whatever pressure, that will go down. That will absolutely go down. That will make you more tolerant. तो असल लाइफ के लिए अगर हमको जिंदा रहना है, जीना है, सीखना है, ये सीख आपको आपके माँ बाप या स्कूल में आपके टीचर्स या कोई भी ऐसा बड़ा बुजुर्ग जिसने वो
जीवन जिया है, वो संघर्ष किया है, वो आपको सही तरीके से बता पाएगा कि कितना ज़रूरी है अपने दिमाग को काबू में रखना। क्योंकि परेशानियां तो अभी आपने देखी ही नहीं है, परेशानियां तो आपकी ज़िंदगी में तब आएंगी जब आप ये सारा कुकून से निकल के एक बाहर की दुनिया में खड़े होंगे, तब आएंगी सारी परेशानियां आपके पास। अभी आपके पास कोई परेशानी नहीं है। तो मेरा सिर्फ आपसे यही कहना है कि अपने माँ बाप की इज्जत करना सीखें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हर इंसान की अहमियत की इज्जत करना सीखें। ये अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि यू नीड टू लर्न टू रिस्पेक्ट द डिग्निटी ऑफ एनी इंडिविजुअल। हमको हर इंसान की इज्जत करना आना चाहिए। हम बेवजह किसी भी इंसान से हम बदतमीजी से बात नहीं करेंगे, हम बेवजह किसी भी इंसान से का कोई नुकसान नहीं करेंगे। अगर ये फीलिंग हमारे अंदर डेवलप आप अभी से करना शुरू कर देते हैं तो आप समझ लीजिएगा कि बहुत सारी चीज़ों को आप नज़रअंदाज भी कर देंगे और आपकी मानसिक शांति आपके साथ रहेगी। आपकी मानसिक शांति आपके साथ रहेगी। अगर आप अंदर से शांत नहीं हैं और अशांत घूम रहे हैं तो यू आर एन एटम बॉम्ब। यू डोंट नो वेयर यू विल एक्सप्लोड एंड what you harm you would be doing to the people around you, and once you do some harm you cannot repair it. कहते हैं ना, एक बार जबान खुल गई, जबान से शब्द निकल गया, आप वापस नहीं ले सकते। यही बात होती है अगर आप बिना सोचे समझे किसी से कुछ बोल जाते हैं और फिर वो वापस नहीं आ सकता। तो ज़िंदगी बहुत लंबी है, संघर्ष बहुत लंबा है, हमको उसको अपने लिए तैयार करना है। हमको ये कोशिश करनी है कि अपने दिमाग को वी शुड बी एज कूल एज वी कुड। वी शुड थिंक बिफोर वी रिएक्ट और एक्ट। if you feel that you need to beat someone, for example, just wait for 30 seconds. Wait for 30 seconds. Think about the pros and cons of your act, your future act that you are going to commit. And if you think कि नहीं गलत हो रहा है, और ये विचार आपके 30 सेकंड में आपका मन बदल जाएगा। जब 30 सेकंड में आपका मन बदल जाएगा तो आप उस भयानक एक्ट को करने से पहले रुक जाएंगे। और आप रुक गए मतलब आपने अपनी ज़िंदगी सेव करी, और आपने अपनी ज़िंदगी सेव नहीं करी, आपने अपने आसपास रहने वाले उन 10, 15, 20 लोगों की ज़िंदगी भी सेव करी है। क्योंकि आपकी एक गलती का खामियाजा वो बेचारे पूरी ज़िंदगी भर भुगतेंगे। तो टॉलरेंस जिसकी हम बात करते हैं, टॉलरेंस आपके अंदर से आएगा। आपको एक जगत गुरु सदगुरु जगी वासुदेव का एक कल मैं सुन रहा था उनको, किसी ने मुझे वो बहुत उनका एक वीडियो छोटा सा भेजा था, मैं यहाँ कोट करूँगा उसको, कि आपकी ज़िंदगी में जो माँ बाप आए हैं तो आप उनको टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते, ना वो आपको ले सकते हैं। हम दोनों को एक दूसरे का वैल्यू करना पड़ेगा। माँ बाप, हम आपके माँ बाप हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमने आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया। वी नीड टू वैल्यू दैट रिलेशनशिप, वी नीड टू डेवलप दैट रिलेशनशिप, एंड नीड टू डेवलप दैट ट्रस्ट ऑल्सो। द फर्स्ट ट्रस्ट यू नीड टू डेवलप विद योर पेरेंट्स, because if you have ever developed the trust with your parents, I'm sure you will never be able to commit any crime in your life, complete life, crime or any mistake. I'm saying mistake. So please cherish that relation with your parents, with your brothers, with your sisters, and rely on them first, then relying on your friends, because your friends are of your same age. मैंने पहले भी कहा, जितने बेवकूफ़ आप हैं उतने ही बेवकूफ़ वो भी हैं। तो उनके पास वो स्किल नहीं है कि वो आपको गाइड कर पाए। आपको गाइड करने की स्किल जिनके पास है, आप उनके साथ समय बिताइए, आप उनके साथ बैठिए और उससे आपकी सारी परेशानियां सॉल्व हो जाएंगी। देखिए, आप लोग अच्छा पढ़ लेंगे, स्किल्स डेवलप कर लेंगे, बहुत खुशी की बात है, लेकिन आपको ज़िंदगी में जीने के लिए, चलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका इमोशनली स्ट्रांग रहना और लाइफ स्किल्स आपके अंदर होना, और सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके अंदर वैल्यूज़ होना। तो अगर आप सिर्फ एक चीज़ सीख लें, जो भी आपके साथ है, काम कर रहा है, ऊपर है, नीचे है, उसकी इज्जत करें, क्योंकि वो एक इंसान है। बस इतना करिए, आपकी सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। तो बस मैं अपने इस
whatever वीडियो को मैं यहाँ एंड करता हूँ कि ये भारत जिन संस्कारों के लिए जाना जाता है, हम एक एक बच्चा इस भारत का सिर्फ इसलिए काम करे कि भारत का नाम कभी नीचा ना हो, इसलिए ना हो कि की जो यंग जनरेशन है भारत की, वो संस्कार भूलती जा रही है। जब हम ये बोलते हैं तो ये नहीं हो सकता। बट please put that in your mind that we need to respect the fellow individuals, fellow human beings, and most importantly, we will listen to our parents. And to summarize, information is flowing everywhere. Before taking any information into your mind, just think once whether this information is good for me or bad. If you think it's bad, flush it off, because you know what is right and what is wrong. Every individual knows what is right, what is wrong, but we still commit wrong knowingly that we are doing wrong. So हमारे अंदर पता है कि we are doing wrong, but वो हम भूल जाते हैं. So just develop a power to discriminate between right and wrong. If you develop that, you will never do wrong in your life. And if you do wrong, or if there is a mistake, mistakes can happen, because to err is human. Mistakes can happen, but start learning from your mistakes. Start analyzing your mistakes. And if you start doing that, I'm sure there's nobody who can stop you to excel. So please keep on excelling in your lives and be a wonderful son, wonderful brother, wonderful sister, and most importantly, a useful citizen for this country and a useful global citizen for the whole planet. Jai Hind, Dhanyavad.